اللہ کی قدرت کا ایک نرالا معجزہ ہے۔ ایک بکری جسے اللہ نے بولنے کی طاقت دی اور وہ بکری قاتل عورت کے خلاف گواہی دے بیٹھی، لیکن یہ بات صرف گواہی تک محدود نہیں رہی۔ اس کے بعد اس عورت کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ اس سبق آموز کہانی کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ اس میں اللہ کی عدل، صبر اور سچائی کی بڑی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا سا گھر تھا۔ اسی گھر میں کرم دین اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ رہتا تھا۔ کرم دین کی پہلی بیوی شبنم تھی۔ ان کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، مگر بدقسمتی سے اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ شبنم روزانہ اپنے دل کے ٹوٹنے کو چھپاتی، لیکن اندر سے خالی ہوتی جا رہی تھی۔ کرم دین کی ماں جو ہمیشہ اپنے پوتے کی خواہش میں تڑپتی رہتی تھی، آخرکار اس نے کرم دین کی دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ شادی کسی امیر یا شہزادی سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک یتیم، خوبصورت اور کم عمر لڑکی مریم سے۔ مریم کے پاس نہ ماں تھی اور نہ باپ، بس ایک پرانی بکری تھی جو اس کی بچپن کی ساتھی تھی۔ اسی بکری کو مریم اپنے ساتھ جہیز میں لے آئی تھی۔ مریم کی عمر صرف 20 سال کی تھی اور اس کی معصومیت اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ جب وہ کرم دین کے گھر آئی تو شبنم نے اسے کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ شبنم کے دل میں حسد کی ایک جلن جنم لے چکی تھی۔ چند مہینوں کے بعد اللہ نے مریم کو خوشخبری دی۔ مریم امیدوں سے بھر گئی تھی۔ کرم دین کی خوشی کا وہ ٹھکانہ نہ رہا، مگر دوسری جانب شبنم کا دل جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ وہ حسد اور جلن میں ہر پل تڑپتی رہتی تھی۔ وہ چھپ چھپ کر روتی، مگر مریم کے سامنے ہمیشہ تلخی دکھاتی رہتی۔ مریم صبر اور خاموشی کی مورت بنی رہی۔ 9 مہینے گزر گئے۔ آخرکار اللہ نے کرم دین اور مریم کو ایک خوبصورت بیٹی دی۔ گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ کرم دین نے بچی کا نام نورین رکھا۔ کرم دین کی بیٹی نورین سے اس کی محبت دیکھ کر شبنم کا دل اندر ہی اندر سڑنے لگا۔ وہ مریم کی خوشیوں سے جلنے لگی تھی۔ دن بدن اس کے دل میں حسد کا زہر بڑھتا جا رہا تھا، اور آخرکار ایک رات اس نے ایک خطرناک پلان بنایا۔ چند دن بعد کرم دین کو ایک ضروری کام سے شہر جانا پڑا۔ وہ صبح ہی شہر روانہ ہو گیا تھا اور شبنم اسی موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں جب پورا گاؤں خواب غفلت میں تھا، شبنم چپکے سے مریم کے کمرے میں آئی، نورین کو اٹھایا اور چادر میں لپیٹ لیا، پھر تیز قدموں سے گھر سے باہر نکل گئی۔ اندھیری رات میں وہ دیوانہ وار جنگل کی طرف دوڑنے لگی۔ تھوڑی ہی دور ایک گھنا سنسان جنگل تھا۔ ایک بڑے پرانے درخت کے نیچے پہنچ کر شبنم نے جلدی جلدی مٹی کھودنی شروع کی۔ اس نے ننھی نورین کو زمین میں پھینک دیا اور تیزی سے مٹی برابر کر دی، جیسے کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ شبنم اپنے اس خوفناک جرم سے مطمئن ہو کر واپس پلٹ گئی، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ مریم کی وہی بکری جو مریم کے جہیز میں آئی تھی، خاموشی سے پیچھے پیچھے آئی تھی اور یہ سارا منظر اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اگلی صبح جب مریم کی آنکھ کھلی تو اس کا دل بے قرار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ نورین بستر پر نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑی۔ نورین، میری بچی کہاں ہو تم؟ مریم کی چیخوں سے پورا گھر ہل گیا۔ شبنم نے دکھاوے کی آنسو بہائے، بڑے افسوس سے سر جھکا لیا اور مکار سلیب سے مریم کے زخموں پر نمک چھڑکتی رہی۔ اسی دوران کرم دین بھی شہر سے واپس آ گیا تھا۔ گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ جنگلوں، کھیتوں اور دریا کے کنارے بچی کو ڈھونڈنے لگے، مگر ننھی نورین کا کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ گاؤں والے تھک ہار کے واپس آنے لگے۔ کئی دن گزر چکے تھے، بچی کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ مریم ہر روز اپنی بکری شیری کے ساتھ اداس بیٹھی رہتی اور اپنی دکھی باتیں اسی بکری سے کہتی۔ شیری اپنی آنکھیں نم کر کے سر ہلاتی، جیسے وہ بھی مریم کا درد محسوس کر رہی ہو۔ کرم دین کی محبت اب بھی مریم کے لیے قائم تھی۔ وہ روز مریم کو تسلی دیتا اور کہتا، ہماری بیٹی مل جائے گی، مریم صبر کرو۔ مگر دوسری طرف شبنم کا دل حسد کی آگ میں مزید جلنے لگا تھا۔ شبنم نے اپنی شرارتی فطرت کو اور بڑھا دیا۔ اس نے گاؤں کے کچھ بد مزاج لڑکوں کو پیسے دے کر مریم کے خلاف جھوٹی اور بدنام کن باتیں پھیلوا دی۔ اب گاؤں میں چرچا ہونے لگا کہ مریم کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، اسی لیے اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے۔ یہ زہریلی باتیں آخرکار کرم دین تک پہنچ گئیں۔ اس کے دل میں ابھی شک کے کالے سانپ نے جگہ بنا لی۔ اب کرم دین کا رویہ مریم کے ساتھ سخت ہو گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ، ناراضگی اور شرارتی عام ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن گاؤں والوں کی دباؤ، بدگمانی اور شرارتوں کی وجہ سے کرم دین نے مریم کو گھر سے نکال دیا۔ مریم روتے ہوئے کھلے میدان کی طرف نکل گئی۔ اس کے پیچھے پورا گاؤں جمع ہو گیا۔ کسی نے طنز کیا، کسی نے بد دعا دی اور کوئی اس پر مٹی اچھالنے لگا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح بہنے لگے۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کے ساتھ ایک وفادار ساتھی تھا، اس کی بکری شیری۔
अचानक उसी लम्हे शीरी ने जोर से आवाज निकाली, इतनी बुलंद कि पूरा गांव हिल कर रह गया। शीरी जो अल्लाह के हुक्म से बोल रही थी, सबके सामने बोल पड़ी, गवाह रहना ए लोगों, नूरीन को शबनम ने जिंदा दफन किया था, मैं खुद देख चुकी हूँ। मरियम पाक दामन है, मासूम है, गुनाहगार शबनम है। पूरा गांव हैरत में मुब्तला हो गया। सबकी नजरें शबनम की जानब हैरत, शर्मिंदगी और खौफ से उठी। इसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। करमदीन का सबर जवाब दे गया। उसने शबनम को जोरदार थप्पड़ मारा और दहाड़ा, बोला, मेरी बेटी कहाँ है? शबनम जो अब पछतावे की आग में झुलसने लगी थी, रो पड़ी और बोली, जंगल में उस घने दरख्त के नीचे मैंने दफन किया था। करमदीन, मरियम और गांव वाले दौड़ते हुए जंगल की तरफ गए, मगर वहां जाकर देखा तो मिट्टी का गड़ा खुला था और अंदर कोई बच्ची नहीं थी। करमदीन और मरियम का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्हें लगा शायद कोई जंगली जानवर उनकी बच्ची को ले गया हो। वो पूरे जंगल में दीवानों की तरह दौड़ते रहे, चीखते रहे, नूरीन नूरीन, मगर जंगल में खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं मिला। कई दिनों की बेचैनी और तड़प के बाद एक दिन अल्लाह वाले बुजुर्ग करमदीन के गांव तशरीफ लाए। करमदीन ने शबनम को उसके गुनाहों की सजा के तौर पर तलाक दे दी थी। अब वो सिर्फ मरियम के साथ ही अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो दोनों अल्लाह वालों के कदमों में बैठ गए। करमदीन ने लरजती हुई आवाज में कहा, बाबा जी, हम दिन रात अपनी गुमशुदा बेटी की जुदाई में रोते हैं। वो जंगल से गायब हो गई थी। हमारी जिंदगी में अब सिर्फ दुख, सब्र और बेबसी बची है। हमारी बेटी हमें कैसे मिलेगी? बुजुर्ग ने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, सुनो बेटा, तुम्हारी बेटी तुम्हें मिलेगी, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश में डाला है। तुम्हारी बेटी तुम्हें अब से पूरे 10 साल बाद मिलेगी, जब वो 12 साल की हो चुकीगी। करमदीन और मरियम एक दूसरे को हैरत और बेबसी से देखने लगे। बुजुर्ग ने करमदीन से कहा, याद रखना, तुम्हें उसी दरख्त के पास तुम्हारी बेटी नजर आएगी। अगर आज से 10 साल बाद तुम्हें कोई 12 साल की लड़की उसी दरख्त के नीचे खेलती या घूमती दिखे तो समझ लेना वो तुम्हारी नूरीन है। इससे पहले तुम लाख चाहो मगर तुम्हें वो नहीं मिलेगी। वो इसी जंगल में है, अल्लाह की अमान में है, मगर वक्त से पहले तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आएगी। ये सुनकर मरियम जोर जोर से रोने लगी, मगर दोनों ने सर झुकाकर अल्लाह के फैसले को कबूल कर लिया। उस दिन के बाद मरियम रोज उस गहरे दरख्त के पास आती, कभी घंटों वहाँ बैठी अपनी बेटी की तस्वीर में खोई रहती, कभी चुपचाप दुआ करती, कभी अपनी बाहों को खोलकर हवा में लिपटती, जैसे अपनी नूरीन को गले लगा रही हो। करमदीन भी अक्सर वहाँ आता, बैठता, रोता और आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहता, या अल्लाह, हमारे सब्र का फल हमें दे दे। यूं करते करते पूरे 10 साल का अरसा गुजर गया। एक दिन हस्बे मामूल मरियम सुबह जल्दी उठ गई। अपनी बकरी शीरी के साथ घने दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई, जहाँ वो बरसों से अपनी बेटी का इंतजार करती आ रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। अचानक मरियम की नजरें चौंक उठी। एक 12 साल की खूबसूरत लड़की दौड़ती हुई मुस्कुराती हुई उस तरफ आ रही थी। लड़की को देखकर मरियम का दिल धड़कने लगा, मगर जैसे ही उस लड़की की नजर मरियम पर पड़ी, वो अचानक रुक गई और उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वो मुड़कर वापस जाने ही वाली थी कि मरियम दर्द भरे लहजे में पुकार उठी, बेटी रुक जाओ, तुम कौन हो? इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? लड़की मुड़ी और मासूमियत से बोली, मैं यहाँ अपने अब्बू के साथ रहती हूँ, आगे हमारी छोटी सी झोपड़ी है। मरियम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे फौरन अल्लाह वाले बुजुर्ग की बात याद आ गई। इससे पहले कि मरियम आगे बढ़कर उस बच्ची को गले लगा लेती, वो कुछ कहने ही वाली थी कि बच्ची जंगल की तरफ दौड़ गई। मरियम उनके पीछे दौड़ने लगी और बेख्तियार अपने होंठों से ये अल्फाज निकाले, नूरीन, मेरी बच्ची, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। मगर वो बच्ची दौड़ती गई, जैसे उस पर कोई काबू ना हो। मरियम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूम रहा था, लेकिन वो बच्ची कहीं नजर नहीं आई। वहीं बैठकर वो जोर जोर से रोने लगी। मरियम के रोने में एक अलग सा दर्द था, जैसे उसका दिल भी टूट चुका हो। उसके जहन में वो बूढ़े का कहा हुआ जुमला गूंजने लगा। इसने कहा था कि ये तुम्हारी ही बेटी होगी, जो तुम्हें उस दरख्त के पास 10 साल बाद नजर आएगी। वो रोती हुई वापस आई तो करमदीन दरख्त के पास परेशान खड़ा था। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के गहरे निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो बोला, क्या हुआ मरियम, क्यों रो रही हो? मरियम ने रोते हुए सारी बात सुना दी। मैंने वो बच्ची देखी थी, वो हमारी नूरीन थी। जो बूढ़े ने कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त निकला। 10 साल मुकम्मल हो चुके थे। करमदीन की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे कोई उम्मीद की किरण जगमगा गई हो, और वो बोला, हम अपनी बेटी को ढूंढ लेंगे। मरियम, तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी और अब हमें बस अपनी बेटी को वापस लाना है। अभी शाम होने वाली है, चलो घर चलते हैं और कल सुबह हम पूरे जंगल में इस झोपड़ी को तलाश करेंगे जिसका जिक्र लड़की ने किया था। दूसरी तरफ वो लड़की जो भाग के झोपड़ी के पास पहुंची थी,
गहरी सांसें ले रही थी। उसका दिल भी अजीब किस्म के खौफ में डूबा हुआ था। बाबा बाबा बात सुनो। अचानक एक बूढ़ा झोपड़ी से बाहर निकला। वो आया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे रानी क्या हुआ? रानी फौरन उसके पास गई और बोली, बाबा आपको पता है, आज मैंने जंगल में एक औरत को देखा जो मुझे अपनी बेटी कह रही थी। मैं तो वहाँ से भागकर आ गई हूँ। आप तो कहते हैं ना कि किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। बूढ़े ने उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश बेटी, तुम बहुत बहादुर हो और मेरी नेक बेटी हो। मगर दिल ही दिल में वो परेशान थे, कहीं इसके असली माँ बाप तो इस तक नहीं पहुँच गए। नहीं, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं दूंगा। ये मेरी बेटी है, मैंने इसकी जान बचाई थी। और मरियम अगली सुबह फिर पूरे जंगल में दौड़ती हुई आई और एक एक जगह जाकर अपनी बच्ची को आवाज देती। वो झोपड़ी भी कहीं ना मिली जिसका जिक्र बच्ची ने किया था। शाम होने को आई और दोनों की तलाश एक और नाकामी की तरफ बढ़ रही थी। मरियम की आंखों में आंसू थे और उसका दिल भर आया था, मगर वो हार ना मानने का फैसला कर चुकी थी। अगली सुबह फिर नई उम्मीद के साथ वो जंगल में आई और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी, उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसके हाथ में एक सफरी बैग था और दूसरे हाथ में एक बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था। वो 12 साल की खूबसूरत और मासूम सी बच्ची थी जिसकी आंखों में एक खास चमक थी। मरियम ने जैसे ही उसे देखा, बेसाख्ता जुबान से निकला, करमदीन, यही है हमारी बच्ची। करमदीन और मरियम फौरन बूढ़े के पास गए और कहा, बाबा हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, ये बच्ची हमारी है। बूढ़े ने उन्हें सख्ती से देखा जैसे उनके दिल में खौफ का तूफान उठाओ और कहा, क्या कह रहे हो? ये मेरी बेटी है, तुम्हारी कहाँ से आ गई? बुजुर्ग का चेहरा बेचैनी से बदल चुका था। करमदीन उनके सामने आकर बोला, तुम्हें खुदा की कसम हमारी फरियाद सुनो। फिर करमदीन रो पड़ा और पूरी कहानी सुनाई। 10 साल पहले मेरी बीवी ने हमारी बेटी को दफन कर दिया था और जब हम जंगल वापस आए तो हमारी बच्ची वहाँ नहीं थी। बुजुर्ग ने कहा था तुम्हें तुम्हारी बेटी 10 साल बाद मिलेगी। जो भी उस दरख्त के पास बच्ची तुम्हें दिखे वो तुम्हारी बेटी होगी। ये सुनकर बुजुर्ग रोने लगे। नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, ये मेरी बेटी है। अगर तुम लोग इसका ख्याल रखते तो उसे दफन नहीं करते। मैंने इसकी जान बचाई है और अब ये मेरी बेटी है। करमदीन और मरियम ने फौरन उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, ये आपकी ही बेटी है, आप जब चाहे उससे मिलने आ सकते हैं, मगर हमें हमारी औलाद वापस दे दो। हमने इससे बहुत अरसा जुदा रहकर गुजारा है और हमने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। अब अल्लाह ने हमें हमारी बेटी वापस दे दी है, तो हमें हमारी बेटी वापस कर दो। कुछ देर वो बुजुर्ग सोच में गुम थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रो रो कर बोले, हाँ ये तुम्हारी ही बेटी है, लेकिन मैंने उसे अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है और उसे बहुत मोहब्बत दी है। करमदीन और मरियम ने फौरन उनका शुक्रिया अदा किया और अपनी बेटी को गले लगा लिया। वो लम्हा बहुत खास था क्योंकि वो सब अपने सब्र का फल पा चुके थे। अल्लाह ने उनकी दुआओं का जवाब दिया था और वो अपनी बेटी वापस पा चुके थे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। पूरा गांव हैरान रह गया। जो लोग कल तक मरियम को बदनाम कर रहे थे, आज उसके सब्र और सच्चाई के सामने सर झुकाए खड़े थे। अल्लाह ने उनके सब्र का सिला दिया था। उन्हें उनकी नौरीन वापस मिल गई थी। यकीन और सब्र इंसान के सबसे बड़े हथियार हैं। जुदाई हमेशा के लिए नहीं होती। दुआ से हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाता है। अल्लाह के करम से बिछड़े हुए भी मिल जाते हैं और जालिमों को उनके अमाल का बदला मिलता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दें कि आपको ये कहानी कैसी लगी।